ایک وقت چشم فلک نے یہ دیکھا کہ یہ آتی تھی، رسالت کھڑی ہو جاتی تھی، یہ بیٹھی رہتی، رسالت کھڑی رہتی، اور ایک وقت وہ بھی آیا، لوگ بیٹھے رہے۔ ہاتھ نہیں جوڑنے، ہاتھ نہیں جوڑنے، میں نے کوئی انکار کیا؟ ایک وقت یہ بیٹھتی، رسالت کھڑی رہتی، ایک وقت لوگ بیٹھے رہے، یہ کھڑی رہی۔ اجرکم اللہ۔ بس میں دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھیں اس غم میں وضو کرتی ہیں، خدا کرے کسی غم میں نہ روئیں۔ مجلس کی روحانیت بتا رہی ہے مالک موجود ہے، یہ بیوی بھی موجود ہے، پردے میں دیکھ رہی ہے ہمیں۔ ہاں، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو، پھر کہوں وہی کہوں۔ میں نے کہا ایک وقت آسمان نے وہ نظارہ دیکھا، یہ بیٹھتی تھی، رسالت کھڑی ہوتی تھی، اور پھر اللہ جانے اس وقت آسمان گرا کیوں نہیں جب لوگ بیٹھے رہے، یہ کھڑی رہی۔ ہاں، اب میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو سارے اندر باہر والے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی دیکھ لیں۔ تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں، چھری چل جائے گی، خنجر چلے گا، خون رونے والے کے صدقے معاف کر دینا۔ اپنے بابا کے بعد صرف 3 دن دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھی ہے بطول نے۔ اللہ، میں نے اسی لیے ہاتھ جوڑے، اسی لیے میں نے ہاتھ جوڑے تھے۔ مجھے پتا ہے عزادار کا دل بہت نرم، بہت نازک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہے بابا ہاتھ نہیں جوڑنے نا، صرف 3 دن تسبیح دائیں ہاتھ سے۔ اب یہاں علماء کے میں نے 2 قول پڑھے ہیں، دونوں تمہیں بتاتا ہوں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں پھر دائیں ہاتھ سے پڑھی؟ وہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ فارغ نہیں تھا، بلا تشبیہ پہلو پہ رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں، بطول ہے، رسول کی بیٹی ہے، علی کا حرم ہے، حسنین کی پاک اماں ہے، چاہے جتنی تکلیف ہوتی بی بی تسبیح کی جان کے توہین نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں یہ ہاتھ تسبیح تھامنے کے لائق ہی نہیں تھا، بطول اس ہاتھ میں تسبیح اٹھا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری طرف دیکھنا، جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے پتھر کا نہیں۔ اکثر اوقات تیرا مولا علی منبر سے خطبہ روک لیتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کے دیکھتے اور پھر چیخے مار کے رونے لگ جاتے۔ قریبی لوگ پوچھتے مولا کیا ہوا؟ رو کے کہتے ان ہاتھوں کے ید اللہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں مولا؟ فرمایا یہ ہاتھ بھی تھے بطول کو یہ بھی تھے بطول کا پہلو زخم۔ اللہ اکبر۔ ان ہاتھوں کی موجودگی میں بطول کے ساتھ یہ ہوا، بس ختم کر دیا۔ ایک فکرہ کہنے لگا ہوں، دعا مانگتا ہوں۔ کائنات کے سلطان کی بیٹی ہے، جنازے میں 7 بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 7 بندے جنازے میں، 7واں عبداللہ بن مسعود ہے۔ یہ راوی ہے، کہتے رات میں اٹھائی، رات میں دفنائی،
अली ने 40 कब्रें बनाई, 40 कब्रों के निशान, पता न चले कहाँ है। दफनाने के बाद कहा सैयदादा जफर भाई फरमाइश की है, यहाँ एक जुमला कह दूं छोटा सा, क्योंकि अली ने जब लहद में उतारा ना, अकेले उतारा और फिर रसूल से खिताब करके कहा, या रसूल अल्लाह, हाज़िही इब्नतुक नाज़िला, तेरी बेटी तेरे सुपुर्द करने आया हूँ। रुद्दल अमानत इलैका, सरकार आपने अमानत दी थी, वापस करने आया हूँ। रसूल की कब्र हिल गई, आवाज आई, यारी अमानत तो दे दी, जब मैंने दे दी हाथ सही सालिम थे, पहलू जख्मी नहीं था। अल्लाह अल्लाह, जी 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 भाई, हाथ क्यों जोड़ते हो? मैंने कोई इनकार किया? हाथ नहीं जोड़ने भाई। कहा यारी जब मैंने अमानत दी थी, सही सालम थी, मैं बता नहीं सकता कि खैबर शिकन पे क्या गुजरी। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहता है, दफन करने के बाद अली ने फरमाया, हसनैन जी बाबा घर जाओ। चले गए। फिर हम सातों से कहा तुम भी जाओ। इब्न मसूद कहता है, मैं अली के कदमों पे गिर पड़ा। मैंने कहा मौला, मेरा दिल अकेला छोड़ने को नहीं चाहता, बीबी के सदके मुझे इमाम बन के हुक्म न देना। अली ने इशारा किया, बैठ जा। बस खत्म हो गई मेरी बात। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहता है, जन्नतुल बकी की टूटी दीवार पे बैठ गए अली, पहले हिचकियों से रोए, फिर सिसकियों से रोए, फिर अमामा उतार के जमीन पे दे मारा, फिर धाड़े मार के रोए। फट तो पत्थर भी सकता है जुमला सुनकर। पहले हिचकियां, फिर सिसकियां, फिर धाड़े। इब्न मसूद हैरान का कहता है, या अली, तूने तो मैदान जंग में मौत को रुलाया है। या अली, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली, सब्र कर। अली ने मुंह पे तमाचे मारे, कहा ओ इब्न मसूद, अगर मर गई होती मैं न रोता। अब मैं तो जुमला ही पढ़ सकता हूं भाई। फरमाया अगर मर गई होती मैं न रोता। या अली, रो क्यों रहे हो? कहा मुझे आज मेरी बेटी ज़ैनब ने बताया, बाबा मैंने गुस्ल के वक्त देखा मेरी माँ की 3 पसलियां टूटी हुई थी, रो इसलिए रहा हूं, मुझे कभी नहीं कहा या अली मुझे दर्द है, या अली मेरा पहलू जख्मी है, मुझे बतूल का सब्र रुला रहा है। अबुल हसन, मेरी ख्वाहिश ये है कि आज आप मेरे पास बैठ जाएं ताकि मैं वसीयतें कर सकूं। अली बाहर जा रहे थे, पलट आए, हुजरे में आए, कहा अबुल हसन, दोनों बच्चियों को कनीज के हवाले करते हैं ताकि बच्चियां कनीज के साथ चली जाएं, मुझे आपसे वसीयतें करनी है। और दोनों बेटों से कहें कि जाएं नाना की कब्र मुतहर की जियारत के लिए। बच्चियां गईं कनीज के पास, हसन हुसैन गए नाना की कब्र की जियारत के लिए। शहजादी ने कहा अबुल हसन दरवाजे को बंद कर दें। अली ने दरवाजा बंद किया, आकर शहजादी के पास बैठ गए। कहा बिन्त रसूल अपनी वसीयतें बयान करें। कहा अबुल हसन, मेरी पहली वसीयत तो यह है कि अगर मेरी खिदमत में कोई तकसीर हो गई हो, अजरकुम अल्लाह, देखो तुमने गिरिया किया और मेरी मजलिस तमाम हो गई। अबुल हसन, अगर मेरी खिदमत में कोई तकसीर हो गई हो तो आप क़यामत के दिन कोई मुआखज़ा न कीजिएगा, यही मुआफ़ कर दें। कहा नहीं बीबी, तुमसे आज तक कोई तकसीर नहीं हुई। कहा अबुल हसन, मेरी दूसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम होंगे, अगर उनसे कोई लग़ज़िश हो जाए तो उनसे डांट के बात न कीजिएगा। अली कांपने लगे। कहा
बिन्ते रसूल, तुम्हारे बच्चे साहिबान तथहीर हैं, उनसे किसी गलती का इम्कान नहीं है। कहा अबुल हसन, मेरी तीसरी वसीयत यह है कि मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाया जाए और मेरे दुश्मनों को मेरे जनाजे में शिरकत की इजाजत न दी जाए। और अबुल हसन, मेरी चौथी और आखिरी वसीयत यह है कि मेरे दफन करने के बाद मुझे भूल न जाना, कभी कभी मेरी कब्र पर सलाम के लिए आते रहना। अजरकुम अल्लाह। सदाएं बुलंद हो गई और अब जाहिर है कि मैं तकरीर को अपने मरहले पे ले आया। अब इससे ज्यादा ज़हमत समाअत नहीं दूंगा। अली ने वसीयतें कबूल की। एक मरतबा अली ने रो के कहा कि बिन्ते रसूल, तुम्हारी वसीयतें तो मैंने कबूल की, लेकिन अब मेरी भी कुछ वसीयतें हैं, उन्हें कबूल करो। पहली वसीयत तो ये है कि मैं जब तुम्हें ब्याह के लाया तो मैं मुफलिस था, तुम्हारी खिदमत का हक अदा न कर सका, तो अपने बाबा से मेरी शिकायत न करना। मेरी दूसरी वसीयत ये कि अपने बाबा को मेरा सलाम पहुंचा देना और उन्हें बता देना कि उनकी उम्मत ने मेरे साथ क्या किया। और मेरी तीसरी और आखिरी वसीयत ये कि मैं मरने के बाद भी सलाम के लिए आता रहूंगा, लेकिन शर्त ये कि जब भी सलाम करूं अपने कानों से जवाब सलाम सुनूं। बीबी ने वसीयतें कबूल की। अली व फातिमा, रावी बयान करता है, अली व फातिमा बैठे हुए गिरिया कर रहे थे कि इतने में जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। बस आखिरी जुमला सुनना और मुझे इजाजत देना। शहजादी ने कहा, अबुल हसन देखें कि ये दरवाजे पे कौन आ गया। अली ने पुकार के पूछा, दरवाजे के बाहर कौन है। एक मरतबा रोते हुए बच्चों ने आवाज दी कि बाबा हम आए हैं। एक मरतबा अली करीब गए, दरवाजा खोला, देखा कि हसन हुसैन दरवाजे पे खड़े हैं और रो रहे हैं। कहा, बेटो मैंने तो तुम्हें नाना की कब्र की जियारत के लिए भेजा था, ये तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो दोनों बच्चों ने रो के कहा कि बाबा जब हम नाना की कब्र पे पहुंचे तो इब्राहिम खलीलुल्लाह की आवाज आई कि या रसूल अल्लाह, फातिमा ज़हरा के यतीम आ रहे हैं। तो बाबा क्या हमारी अम्मा दुनिया से गुजर गई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आपने गिरिया किया, तकरीर तमाम हो गई। अब आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं। अली और फातिमा ने वसीयतें की और अब अली बाहर आए। अली बाहर आए, मस्जिद में बैठ गए। शहजादी ने कनीज से कहा, यह मेरी तकरीर का आखिरी जुमला है। तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। और तुम जानते हो कि मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता, आज मैंने बहुत मसाइब पढ़ लिए, फकत आखिरी जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। अली मस्जिद में आके बैठ गए। बीबी ने कनीज से कहा कि मैं अब हुजरे को बंद कर रही हूं, जब तक जिक्र इलाही की आवाज आती रहे उस वक्त तक समझना कि मैं जिंदा हूं, और जब जिक्र इलाही की आवाज बंद हो जाए तो जाकर अली को इत्तला दे देना। कनीज दरवाजे के बाहर बैठ गई। एक मर्तबा जिक्र इलाही की आवाज बंद हुई, कनीज दौड़ती हुई मस्जिद में आई। हिम्मत नहीं है कि अली से कुछ कह सके। एक मर्तबा कनीज ने सर से चादर खींची और अली के कदमों पे डाल दी और कहा, मौला इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फकत दो जुमले। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तुमने गिरिया किया, मजलिस अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। अली आए, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा तैयार किया। यह है मेरी तकरीर का आखिरी जुमला। जब जनाजा तैयार हो गया तो एक मरतबा आवाज दी, या हसन, या हुसैन, या ज़ैनब, या उम्म कुलसूम, हलुम्मु इला ज़ियारत उम्मिकुम। तुम्हें कुछ मालूम है कि इन बच्चों की उम्रें क्या थी? हसन 7 साल के थे, हुसैन 6 साल के थे, शहजादी ज़ैनब 4.5 साल की थी, शहजादी उम्मे कुलसूम 2.5 साल की थी। आवाज दी जनाजा तैयार करके कि हसन अपनी माँ का आखिरी दीदार करो, हुसैन अपनी माँ का आखिरी दीदार करो, ज़ैनब उम्मे कुलसूम अपनी माँ का आखिरी दीदार करो। घर की कनीज बयान करती है कि 2 बच्चे दौड़ते हुए माँ के पास आ गए। हसन आए, उम्मे कुलसूम आई और 2 बच्चे दरवाजे पे खड़े रहे। हुसैन खड़े रहे, शहजादी ज़ैनब खड़ी रही। अली ने आवाज दी, बच्चों तुम भी तो आओ। हुसैन ने रो के कहा कि बाबा हम उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक अम्मा वैसे न बुलाए जैसे मरियम ने ईसा को बुलाया था। बस ये सुनना था कि फातिमा ज़हरा के बंदे कफन टूट गए। एक हाथ से हुसैन को बुलाया, एक हाथ से ज़ैनब को बुलाया। दोनों बच्चे आकर माँ के सीने से लिपट गए।
एक मरतबा जिब्रील ने आवाज दी कि या अली बच्चों को मां से अलग करो वरना कायनात में जलजला आ जाएगा। सुबह से जाग रही है फातिमा ज़हरा, सुबह से अपने बच्चों को तैयार कर रही है फातिमा ज़हरा, सुबह से बच्चों को नहला रही है फातिमा ज़हरा, सुबह से बच्चों के बालों में शाना कर रही है फातिमा ज़हरा। कलेजे से लगाकर बच्चों को नाना की कब्र पे भेजा, जाओ नाना की कब्र पे सलाम करके आओ। हसन हुसैन सलाम करने के लिए गए। इधर बतूल बीबी अस्मा को बुलाकर कनीज को कहती है आज मेरा आखिरी दिन है, यह है इख्तियार, आज मैं अपने बाबा के पास जा रही हूं, आज मेरी मुश्किल के दिन खत्म हो रहे हैं। फातिमा को बड़ा सताया है इस उम्मत ने, फातिमा को बड़े दुख दिए हैं इस उम्मत ने। सुनोगे जुमला कितने दुख दिए हैं। अभी घर में हम बैठे हुए थे, बच्चे बातें कर रहे थे, अभी बच्चे बातें करते हुए मैं सुन रहा था बैठा हुआ। बच्चे कह रहे थे बीबी फातिमा की, हाँ हमारे भाईजान ही कह रहे थे इकबाल मेहदी साहब कि बीबी फातिमा की उम्र 18 बरस, सिर्फ 18 बरस, सिर्फ 18 बरस। आपने देखी है कायनात में कोई ऐसी बीबी जो 18 बरस में ज़ईफ हो? हाँ, आपने देखी है कोई ऐसी मजलूम बीबी जो 18 बरस की कड़ियल जवान उम्र में ज़ईफ हो जाए? मेरे भाई, फातिमा ज़हरा को ज़ईफ होने के लिए 18 बरस नहीं लगे। बीबी ज़ैनब कहती हैं घर से दरबार में अपना हक लेने गई थी तो मेरी माँ के बाल सियाह थे, 4 घंटे उम्मत के दरबार में खड़े रहकर महरूम वापस आ गई तो बतूल के सर के बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। हमारे पास कोई गम, हमारे पास कोई अपने आप को तसल्ली देने के लिए लफ्ज़ें नहीं है। मैं अपने बच्चों को, अपने भांजों को, मैं नुसरत को, शुजात को, सतवत को, नम्मो को, अंजुम को, इन्हें मैं कैसे तसल्ली दूं कि तुम्हारी मां मर गई? इन्हें मैं कैसे बताऊं कि बेटा तुम्हारी मां मर गई, तुम सब्र करो? ये कैसे सब्र करें? लेकिन इन्हें सब्र आ जाएगा कि इनकी मां मर गई तो हैदराबाद से भी अजीज आ गए, कराची से भी अजीज आ गए, लाहौर से भी अजीज आ गए, टेलीफोन पर इत्तला हो गई, सखर के सारे मोमिनीन भी शरीक हुए। इतनी बड़ी तादाद में जनाजे में मोमिनीन शरीक थे, इसलिए कि फातिमा की एक कनीज का जनाजा उठा था। इन बच्चों को जरूर तसल्ली आएगी, बेटा हाँ मैं तुम्हें गरीब मां दिखाऊं जिसका मदीने में जनाजा उठ रहा है रात के वक्त। तुम्हें तसल्ली होगी, तुम्हें तसल्ली हो जाएगी बेटा, तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। तुम्हारे मामू भी आ गए, तुम्हारे भाई भी आ गए, तुम्हारे चचा भी आ गए, तुम्हारी बहनें भी आ गई, तुम्हारे आइज़ा भी आ गए। सबने तुम्हें कलेजे से लगाया, बड़ों ने तुम्हें सीने से लगाया, छोटों ने तुमसे प्यार किया, सबने तुम्हारा साथ दिया। तुम्हें तसल्ली हो गई होगी, तुमने अपनी माँ का इलाज भी कराया होगा, तुमने अपनी माँ की खिदमत भी बेटा बहुत की है, साले औलाद हो, बहुत खिदमत अपनी माँ की है। मैं तुम्हें बताऊं, हसन हुसैन की माँ भी बीमार थी, हसनैन की माँ भी बीमार थी। पता कब चला है? जब अली जैसे बादशाह ने फातिमा ज़हरा को लिटाकर गुस्ल देना शुरू किया और अस्मा ने पानी डालना शुरू किया तो अस्मा कहती है कि गुस्ल देते देते अली जैसे बहादुर की चीख निकल गई। अली जैसे बहादुर की चीख निकल गई। अस्मा कहती है शेर खुदा आप रो रहे हैं, मौला आप रो रहे हैं, आप और रो रहे हैं। मौला अली फरमाते हैं अस्मा मैं फातिमा की मौत पे नहीं रो रहा, फातिमा की गुर्बत पे रो रहा हूं। आज गुस्ल देते हुए पता चला कि दाएं पहलू की पसलियां बाएं पहलू से निकली हुई हैं, जख्म हरा है और बतूल ने 6 महीने सब्र किया, मुझसे गिला भी नहीं किया। यह है फातिमा, यह है कायनात की शहजादी, यह है कायनात की मलिका, यह है कायनात की मालिक। अज़ादारो जुमला सुनोगे? बस मजलिस खत्म कर रहा हूं। इन्हीं बच्चों को तसल्ली देते हुए ये जुमला कहकर
मैं अपनी बहन को इशारे सवाब करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। सखर में इतनी बड़ी मोमिनीन की आबादी है, मौला आप सबको सलामत रखे। आप इतनी बड़ी तादाद में मेरी बहन के जनाजे में शरीक हुए। बेटा तुम्हें तो तसल्ली हो जानी चाहिए कि तुम्हारी माँ के जनाजे में इतनी बड़ी तादाद में मोमिनीन, मोमिनात, आइज़ा, अहबाब सब शरीक हुए। आ मेरे साथ मदीने चल, मैं तुझे एक गरीब बेटी दिखाऊं जिसका जनाजा मदीने में रात के वक्त ताबूत में निकल रहा है, और उस वक्त मदीने की आबादी 40,000 मुसलमानों की आबादी है। तो रसूल की बतूल बेटी के जनाजे में तो सारा मदीना आ गया होगा ना, जनाजा उठाने की जगह भी नहीं रही होगी। खुदा की कसम इन आंखों से पढ़ा कि बतूल रसूल की इकलौती बेटी बतूल, जिसका जनाजा मदीने की 40,000 मुसलमानों की बस्ती में उठा है, उस बतूल का जनाजे का चौथा पाया उठाने वाला कोई मर्द नहीं था। अब आप तुम समझो या ना समझो, मैं तो पढ़ चुका। इतनी गरीब थी बेटी रसूल की कि उसके जनाजे का चौथा पाया उठाने वाला कोई मर्द नहीं था। बतूल के जनाजे का अगला पाया अली बादशाह के कांधे पर, दूसरा पाया बूढ़े सलमान फारसी के कांधे पर, तीसरा पाया बतूल के जनाजे का छोटे छोटे हसन और हुसैन के कांधे पर, और चौथा पाया उठाने वाला बतूल के जनाजे का कोई मर्द नहीं था। बूढ़ी फिजा ने बतूल के जनाजे को कांधा दे रखा था और रोज़े रसूल की तरफ रुक करके कह रही थी, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अपनी बेटी की गुर्बत देख, ये तेरी बेटी का जनाजा है।